Hello friends, good morning. I hope so you are doing well. Friends, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज पॉइंट नंबर F, फ्री कंसेंट. इफ यू ऑल रिमेम्बर तो हम लोग ने एक जर्नी चालू किया था जिसका नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. This entire chapter was been divided into 5 parts. Part 1, what is contract, which we have already completed, that is 2b plus 2e plus 2h. Part 2, types of contract, which is also already been completed, that is each and every contract can be divided into 3 parts, that is on the basis of formation, on the basis of performance, and on the basis of validity. Then we have started our topic called as Roman number 3, how to form a contract. Friends, whenever we are going to form a contract, can I say we are going to form a valid contract? In order to form a valid contract, we need to fulfill the provisions which are given under section number 10 of Indian Contract Act 1872. सेक्शन नंबर 10 डील करता है असेंशियलिटीज ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसमें टोटल 8 असेंशियलिटीज थी, जिसमें से हम लोग ने फिलहाल 5 असेंशियलिटीज को देख लिया है. We have already completed a topic called as proper offer. We have also completed a topic called as proper acceptance, intention to create legal relations, capacity of a party to enter into a contract, consideration. ये 5 टॉपिक्स को हमने खत्म कर दिया है. नाउ लेट अस बिगिन आवर जर्नी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 6, फ्री कंसेंट. दैट इज पॉइंट नंबर F, फ्री कंसेंट. फ्रेंड्स, जब भी आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, in order to enter into a contract you require consent of each other. Friends, can I have a contract with myself? ना ना, मैं खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता है. तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए देयर हैज टू बी 2 और मोर पार्टीज. फॉर एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई को अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, if Mr. X wants to enter a contract with Mr. Y, so in that case there has to be consent of both the parties. कंसेंट को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इट इज समथिंग कॉल्ड एज परमिशन. कंसेंट का इंग्लिश मीनिंग होता है परमिशन. मैं अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहता हूं तो इन दैट केस आई विल रिक्वायर योर कंसेंट. In a similar way, if you want to enter a contract with me, then you require my consent. दोनों पार्टीज का जब तक कंसेंट नहीं होता है तब तक कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं होता है. फ्रेंड्स, तो यहाँ पर whenever you want to enter into a contract, you require to have a consent. यहाँ पर हमें एक्चुअली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें कंसेंट नहीं चाहिए, हमें फ्री कंसेंट चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अगर ऑफर चाहिए था तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए प्रॉपर ऑफर चाहिए था. In order to enter into a contract, we required acceptance. In order to enter into a valid contract, we require proper acceptance. वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए कंसेंट चाहिए, बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए फ्री कंसेंट चाहिए. मैं आप लोगों को फ्री कंसेंट तब सिखा सकता है जब आपको सबसे पहले कंसेंट का मतलब पता चलेगा. बिफोर अंडरस्टैंडिंग फ्री कंसेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट. The concept of consent, the provisions of consent is given under section number 13 of Indian Contract Act 1872. Consent, that is section number 13. The word says consensus ad idem. The Latin words over here are saying consensus
ad idem, that is meeting of minds. कंसेंसस एड idem का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर एक्स को अपना कार बेचना है तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑफर दिया. मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला, वुड यू लाइक टू बाय माई कार फॉर ₹10 lakhs. वाई बोला, ठीक है, आई एम रेडी टू बाय योर कार फॉर ₹10 lakhs. कैन आई से एक्स एंड वाई की सोच एक ही चल रही है. एक्स की सोच है गाड़ी बेचने की, वाई की सोच है उसी गाड़ी को खरीदने की. एक्स wanted to sell the car for 10 lakhs, Y is going to buy that car for ₹10 lakhs. तो can I say X and Y का meeting of minds हो रहा है. They are having a same thing in a same sense. They are thinking same and they are thinking in a same direction. तो it is called as a consent. हर कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए कंसेंट की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू एंटर इन टू माई प्रीमाइसिस, अगर आपको मेरे पैलेस में आना है, आई रिपीट, घर नहीं बोला, पैलेस बोला है, पैलेस. नाउ डोंट बी जेलस फॉर द सेम. अगर आपको मेरे पैलेस में आना है तो कैन आई से, इन ऑर्डर टू एंटर इन टू माई प्रॉपर्टी यू रिक्वायर माई परमिशन. क्या आप मेरे परमिशन के बिना आप मेरे प्रॉपर्टी में आ सकते हो? नहीं ना. तो उसी प्रकार whenever you want to enter into a contract you require to have a consent, जिसको लैटिन वर्ड्स में बोलते हैं consensus ad idem, that is meeting of minds which is for the same thing and it is in a same sense. Are you sure? बट फ्रेंड्स, हमें कंसेंट तब चाहिए जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं. वी आर नॉट ओवर हियर टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, वी आर ओवर हियर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? ना 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 ना, हमें तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए. In order to enter into a valid contract, we don't require a consent, we require a free consent. What do you mean by free consent? Free consent एक ऐसा consent है, free consent एक ऐसा consent है which should not be taken either by coercion, or it should not be taken by undue influence, or it should not be taken by fraud, or it should not be taken by misrepresentation, or it should not be taken by mistake. ये 5 में से कोई भी एक चीज का यूसेज नहीं करने का. You should not take someone's permission. I repeat, you should not take someone's permission either by coercion, or by undue influence, or by fraud, or by misrepresentation, or by mistake. ये 5 में से कोई भी एक चीज को यूज नहीं करना है. अगर आपने ये 5 में से कोई भी एक चीज को यूज किया एंड अगर आपने किसी का कंसेंट लिया तो वो एक कंसेंट माना जाएगा, बट फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा. It will be considered as a consent, but it won't be considered as a free consent. हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, हमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है. एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट होना ही चाहिए. हाँ, याद करो ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए देयर वर टोटल 8 थिंग्स रिक्वायर्ड, जिसमें से पॉइंट नंबर 6 बोल रहा था फ्री कंसेंट के बारे में. So, in order to enter into a valid contract, we require a free consent. Free consent is a consent which should not be taken either by coercion, or by undue influence, or by fraud, or by misrepresentation, or by mistake. ये 5 में से अगर कौन सा भी एक चीज का आपने यूसेज किया है, ये 5 में से
कोई भी अगर एक चीज का आपने यूसेज किया है तो इन दैट केस वो एक प्रकार का कंसेंट माना जाएगा, बट वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। याद करो, मैंने आपको बोला था कि इफ यू वांट टू एंटर इनटू माय पैलेस, अगर आप मेरे पैलेस के अंदर आना चाहते हो तो कहना ऐसे आपको मेरा परमिशन चाहिए, आपको मेरा कंसेंट चाहिए। हाँ, बट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने सीधा का सीधा एक बंदूक निकाला और मेरे कन पट्टी के पास रख दिया। जैसे आपने बंदूक निकाला और मेरे कन पट्टी के पास रख दिया और आपने मुझे बोला, मोटे हमें तेरे पैलेस के अंदर आने दे वरना हम गोली चला देंगे। अब मैं आपको मेरे पैलेस के अंदर आने दूंगा या नहीं आने दूंगा? प्रीटी ऑब्वियस है, मैं आपको मेरे पैलेस के अंदर आने दूंगा। बट कैन आई से आपने मेरा ये परमिशन फोर्सफुली लिया है? हाँ, आपने मेरा ये परमिशन फोर्सफुली लिया है। यहाँ पर मैंने कंसेंट दिया है, बट मैंने कोई प्रकार का फ्री कंसेंट नहीं दिया है। It was my consent that you are allowed to come into my premises, but that consent you have taken through a force. अगर आप फोर्स के थ्रू कंसेंट लेते हो तो भैया वो एक प्रकार का कंसेंट बोला जाएगा, बट वो एक प्रकार का फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। हाँ, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। In order to enter into a valid contract, we don't require a consent, we require free consent. Are you understanding? So, free consent का पूरा अंडरस्टैंडिंग सेक्शन नंबर 14 में दिया गया है। सेक्शन नंबर 14 बोलता है कि फ्री कंसेंट is a consent which should not be taken either by coercion or it should not be taken by undue influence or it should not be taken by fraud or it should not be taken by misrepresentation or it should not be taken by mistake. हम लोग ये पांचों के पांच प्रोविजंस को डिटेल में पढ़ते हैं। इतना याद कर लो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे कोवर्जन नॉट अलाउड, अनड्यू इन्फ्लुएंस नॉट अलाउड, फ्रॉड नॉट अलाउड, मिसरिप्रेजेंटेशन नॉट अलाउड, मिस्टेक नॉट अलाउड। अगर ये पांच में से कोई भी एक चीज का यूसेज किया है तो फ्रेंड्स कंसेंट है, बट फ्री कंसेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। So let us begin our journey for the very first topic, that is coercion. कोवर्जन को अगर मैं इंग्लिश के लैंग्वेज में बताऊं तो कोवर्जन का इंग्लिश मीनिंग हो जाता है फोर्स, जोर जबरदस्ती करना, फोर्स। लॉ बोलता है कि आप लोग कभी भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जोर जबरदस्ती के थ्रू एंटर नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाय अप्लाइंग अ फोर्स। यू कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाय अप्लाइंग कोवर्जन। जोर जबरदस्ती बोलो, फोर्स बोलो या कोवर्जन बोलो, बात तो एक ही है। But if you are a professional, then instead of using the word coercion, instead of using the word zor jabardasti, instead of using the word force, it's better you use a word called as coercion. Are you understanding? What do you mean by coercion? कोवर्जन का मतलब देखो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे ला लिया है। कोवर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। या तो आप कोई कांड कर रहे हो या तो आप कुछ करने के लिए धमकी दे रहे हो। ऐसा कोई चीज विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड दैट इज आईपीसी। अगर आपने ऐसा कोई चीज किया या तो ऐसा कोई चीज करने का धमकी भी दिया तो आप एक प्रकार का कोवर्जन कर रहे हो। इनफैक्ट अगर आप किसी के प्रॉपर्टी को ले लेते हो या तो आप किसी के प्रॉपर्टी को लेने का धमकी भी देते हो,
if you are unlawfully detaining someone's property or else you are threatening to detain someone's property, then also you are doing something called as coercion. तो coercion का देखो 4 पॉइंट बन जाता है. Committing an act which is forbidden by Indian Penal Code, या तो threatening to commit an act which is forbidden by Indian Penal Code. अगर मैं आपको लाफे पे लाफा मारता है और मैं आपको बोलता है आपका घर मुझे बेच दो 10 रुपए में, आप ना बोलते हो, मैं आपको लाफे पे लाफा, पंच पे पंच, लास्ट पंच एंड यू विल बी नो मोर. लास्ट पंच मारने से पहले आपने बोला सर प्लीज अब मत मारना, मैं मेरा घर आपको बेचने के लिए रेडी हूं, वो भी सिर्फ 100 रुपए में. ओवर ईयर कहने से मैंने ऐसा कोई चीज कमिट किया है विच वॉज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड. किसी को लाफा मारना, किसी को पंच देना, ये सब हमारे इंडियन पेनल कोड के खिलाफ होता है. इवन इफ यू थ्रेटन टू समवन, अगर आप सिर्फ धमकी देते हो कि आप उनके साथ ऐसा कोई व्यवहार करोगे which is forbidden by Indian Penal Code, then even in that case you are applying a coercion. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला क्या आप मुझे आपका घर 10 रुपए में बेचोगे, आपने मना कर दिया. मैंने सीधा का सीधा बंदूक निकाला और मैंने आपको बोला अब बता क्या तू 10 रुपए में घर बेचेगा. कहना इसे बंदूक की नोक पे मैंने आपके पास से घर खरीद लिया. मैंने गोली नहीं चलाई है, मैंने सिर्फ आपको धमकी दी है कि मैं गोली चलाऊंगा. तो कहना इसे आई एम थ्रेटनिंग यू टू डू समथिंग व्हिच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड. So whether you commit an act which is forbidden by Indian Penal Code or you threaten to commit an act which is forbidden by Indian Penal Code, you are applying a coercion. अगर मैं आपके प्रॉपर्टी के अंदर घुस गया है और मैंने आपको बोल दिया चल अभी से ये प्रॉपर्टी मेरा है, आप निकल लो इधर से, अगर आप इस प्रॉपर्टी में दिखाई दोगे वापस से तो मैं आपके पूरे के पूरे परिवार का खात्मा कर दूंगा. आप फटाफट प्रॉपर्टी खाली करके चले गए. कहना इसे मैंने अनलॉफुली आपके पास से प्रॉपर्टी ले लिया है, तो यहाँ पर मैंने कोवर्जन अप्लाई किया है. See, even if you are unlawfully detaining a property, you are applying a coercion. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा नहीं किया है, बट मैंने आपको सिर्फ धमकाया कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लूंगा, मैं आपकी प्रॉपर्टी को मेरे कब्जे में ले लूंगा. तो कहने से ये चीज का डर मैंने आपके मन में डाल दिया, तो आप अब वही चीज करोगे जो मैं चाहूंगा. कहने से मैंने आपको सिर्फ थ्रेटन किया है कि मैं आपका प्रॉपर्टी डिटेन कर लूंगा. तो यहाँ पर भी मैंने आपके साथ अप्लाई किया है कोवर्जन. तो फ्रेंड्स, कोवर्जन का मतलब होता है कमिटिंग एन एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, या तो थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, या तो अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ समवन्स प्रॉपर्टी, या तो थ्रेटनिंग टू डिटेन समवन्स प्रॉपर्टी. ओवर ईयर ये 4 में से अगर आपने कौन सा भी एक चीज किया तो इन दैट केस आपने कोवर्जन अप्लाई किया. फ्रेंड्स, क्या आप किसी का कंसेंट कोवर्जन के थ्रू ले सकते हो? नहीं, कभी भी कंसेंट कोवर्जन के थ्रू नहीं लेना है. मतलब आप कभी भी किसी के साथ कोई प्रकार का जोर जबरदस्ती वाला व्यवहार नहीं करोगे. If you want to enter into a contract with me, then you have to give a free consent. If I want to enter a contract with you, then I will have to give a free consent. कोवर्जन से लिया हुआ कंसेंट होता है, बट वो कभी भी फ्री कंसेंट नहीं होता है. ओवर ईयर जब भी मैं कोवर्जन का बात करूंगा तो उसके अंदर एक प्रकार का फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व हुआ रहेगा, एक प्रकार का फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व हुआ रहेगा. देखो ना, मैं आपको पंच पे पंच मार रहा था, मैं आपको बंदूक की नोक पे रख रहा था, तो कहने से मैं एक प्रकार का फिजिकल फोर्स अप्लाई कर रहा था. ओवर ईयर कोवर्जन को, यस फ्रेंड्स, कोवर्जन में एक प्रकार का फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व होता है, एक प्रकार का फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व होता है. ओवर ईयर कोवर्जन को अंडर इंग्लिश लॉ ड्यूरेस के नाम से जाना जाता था.
अगर आप इंग्लिश लॉ देखोगे तो कोवर्जन वॉज बीन कॉल्ड एज ड्यूरेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कभी भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर किसी के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहते हो तो इन दैट केस यू आर नेवर एवर बीन अलाउड टू अप्लाई कोवर्जन, क्योंकि अगर कोवर्जन अप्लाई करोगे तो इन दैट केस फ्री कंसेंट नहीं होएगा, एंड अगर फ्री कंसेंट नहीं होएगा तो इन दैट केस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। लॉ बोलता है कि कोवर्जन करने के लिए, जोर जबरदस्ती करने के लिए जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। ना 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 ना, जोर जबरदस्ती कोई स्ट्रेंजर भी कर सकता है। Coercion can be given even by a stranger. Yes, for example, I'm interested to buy your house. तो मैं सीधा का सीधा आपके पास आया और मैंने आपको बोला, would you like to sell your house to me for ₹100 only? मेरा ऑफर सुनने के बाद आपने सीधा का सीधा मेरे मुंह पे बोल दिया, नो, आई एम नॉट रेडी टू सेल माई हाउस फॉर ओनली ₹100। मैं बोला, बट आई एम इंटरेस्टेड टू बाय दैट हाउस फॉर ₹100। वुड यू लाइक टू सेल इट टू मी? यू सेड, नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेल दैट हाउस फॉर ₹100। देखो, मैंने आपको दिया ऑफर, आपने मुझे दिया रिजेक्शन ऑफ ऑफर। अगर ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या मेरे और आपके बीच में कोई प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो ओवर हियर मुझे तो आपका घर खरीदना ही था, बट आप घर बेचने के लिए मना कर रहे थे। तो मैंने आपको बोला, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, वुड यू लाइक टू सेल योर हाउस टू मी फॉर ₹100 ओनली? तो आपने मुझे बोल दिया, नो मीन्स नो, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ₹100 में घर नहीं बेचा जाएगा। मैं बोला, ठीक है, आपको नहीं बेचना है तो मत बेचो, आपका घर, आपकी विश, अलविदा। इतना कह के मैं आपके घर से निकलने वाला था कि मैं रुक गया। मैं वापस आपके पास आया और मैंने बोला कि अभी फिलहाल बज रहा है 11। ठीक 1.5 घंटे के बाद मेरा दोस्त आपको फोन करेगा। आप मेरे दोस्त के साथ अच्छे से बात कर लेना। आपने बोला, जिसका भी फोन आएगा, हम डरता नहीं है, हम घर नहीं बेचेगा मतलब नहीं बेचेगा। मैं बोला, इट्स ओके, आपका घर, आपकी विश, अलविदा। अब यहाँ पे ठीक 1.5 घंटे के बाद 12:30 बजे, आप मेरे दोस्त का पंक्चुअलिटी देखिए। ठीक 12:30 बजे मेरा दोस्त श्री दाऊद इब्राहिम मेरा दोस्त श्री दाऊद इब्राहिम आपको फोन करता है। आपके और दाऊद इब्राहिम के बीच में जो बात हुआ था वो तो अभी आप समझ ही जाओ। ठीक 12:45 बजे, हाँ, वो फोन खत्म करने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर आप मेरे पास आए और आपने मुझे बोला, सर, मैं मेरा घर ₹100 में बेचने के लिए रेडी हूँ। अब यहाँ पे समझो, क्या मैंने कोई प्रकार का जोर जबरदस्ती किया? नहीं, बट कैन आई से, ये जोर जबरदस्ती, ये कोवर्जन एक स्ट्रेंजर के पास से आया था। तो अगर अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में भी जोर जबरदस्ती हुआ तो भी वो कोवर्जन माना जाएगा। अगर कोई बाहर वाला आकर जोर जबरदस्ती करेगा तो वो भी कोवर्जन माना जाएगा। आर यू श्योर? लॉ बोलता है, इवन इफ यू आर थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड। अरे भैया, आप सुसाइड नहीं कर रहे हो, आप किसी को धमका रहे हो कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं सुसाइड कर लूंगा। इवन इफ यू आर थ्रेटनिंग समवन टू कमिट सुसाइड, तो वो भी एक प्रकार का कोवर्जन माना जाता है। Yes, even if you are threatening to someone that you are going to commit a suicide, then even that thing will amount to coercion. वन फाइन डे श्रेया की मॉम श्रेया के पास गई। अब मैंने बोला, श्रेया की मॉम श्रेया के पास गई तो दोनों के दोनों माँ बेटी में हद बार लव एंड अफेक्शन था। श्रेया की मॉम ने श्रेया को बोला, अरे श्रेया, तेरा पूरा का पूरा प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे। श्रेया बोली, नहीं माँ, प्रॉपर्टी मेरे पास है तो मेरे नाम पे रहने दो, मैं वो प्रॉपर्टी आपके नाम में करना चाहती नहीं हूँ।
तो यहाँ पर माँ को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तो माँ ने डाइनिंग टेबल पे रखा एक चाकू उठा लिया, एक नाइफ उठा लिया, और माँ ने वो नाइफ सीधा का सीधा अपनी हाथ की हथेली पे रख दिया और बोला, श्रेया, अगर तूने तेरा प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं किया तो मैं मेरा हाथ का नस काट दूंगी। श्रेया डर गई। श्रेया सोची कि मेरे लाइफ में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी मॉम है, प्रॉपर्टी नहीं है। आउट ऑफ अ फियर of losing the loved ones, out of the fear of losing the loved ones, श्रेया ने बोल दिया, नहीं माँ, नहीं माँ, हाथ का नस मत काट, मैं पूरा प्रॉपर्टी तेरे नाम पे कर देती हूँ। Can I say her mom just tried to threaten her to commit suicide? उन्होंने सुसाइड नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ मरने का धमकी दिया था। तो can I say even in that case श्रेया की मॉम ने श्रेया का कंसेंट coercion के थ्रू लिया है? Yes or no? So what is coercion? Coercion means you are committing something which is forbidden by Indian Penal Code, or else you are threatening to commit something which is forbidden by Indian Penal Code. या तो you are unlawfully detaining someone's property, या तो you are threatening to detain someone's property. जब भी हम coercion का बात करेंगे तो एक प्रकार का फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व हुआ रहेगा। हाँ जी, coercion एक स्ट्रेंजर के थ्रू भी आ सकता है। Even threat to commit suicide amounts to coercion. अब आप सोचिए जब भी coercion अप्लाई हुआ है, जब भी किसी का कंसेंट कोवर्जन के थ्रू लिया गया है, तो क्या वो फ्री कंसेंट माना जाएगा? नहीं, क्योंकि जोर जबरदस्ती किया गया था। आप अपना घर 100 रुपए में बेचना नहीं चाहते थे, बट जोर जबरदस्ती के थ्रू आपको वो घर बेचना पड़ेगा। वैसे ही श्रेया अपना पूरा प्रॉपर्टी अपने मॉम के नाम पे ट्रांसफर करना नहीं चाहती थी, बट फिर भी उसने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया out of a force. So whenever there is a coercion involved, it does not amounts into a free consent. अब सोचिए, अगर कोवर्जन अप्लाई किया गया है तो इन दैट केस जब मैंने आपके ऊपर कोवर्जन किया था, जब मैंने आपको फोर्स किया था 100 रुपए में प्रॉपर्टी बेच दो, तो आपने डर के कारण प्रॉपर्टी तो बेच दिया। अब क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आप कोर्ट जा सकते हो? हाँ, आप मेरे खिलाफ कोर्ट में केस करने जा सकते हैं, बट क्या मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस करने जा सकता है? मैं ऐसा बोलेगा, अरे जज मजा आ गया, जज मजा आ गया, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी था, 100 रुपए में खरीद लिया। जज बोला कैसे? मैंने बोला टैलेंट यूज किया, दाऊद की मदद से। क्या मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है? नहीं, बट क्या आप मेरे खिलाफ कोर्ट में जाके केस कर सकते हो? यस। याद करो, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ only at the option of one or more party but not at the option of other party, then such contract is called as, very good, voidable contract. So whenever a coercion is going to get applied, जब भी coercion apply करोगे तो याद रखना, उधर फ्री कंसेंट नहीं होएगा, उधर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। उधर जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कहलाएगा voidable contract. So whenever you are applying coercion, and in that case, the contract which gets formed will be called as a voidable contract. ओवर ईयर जब मैंने आपके साथ कोवर्जन किया था, तो कैन आई से आप मेरे खिलाफ कोर्ट में जाके केस कर सकते हो, बट मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता है। सो ओवर ईयर इट इज नथिंग बट अ voidable contract. It is nothing but a voidable contract. Are you understanding? So whenever you are going to apply coercion, then in that case, it is not a free consent, but the contract will be considered as a voidable contract. प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हमें voidable contract चाहिए? नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो याद कर लो, मस्तक पे दस्तक दे दो कि भैया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कभी भी कोवर्जन यूज नहीं करने का। Are you understanding? Let us go on to the next concept which says undue influence. Law बोलता है, in order to enter into a valid contract, in order to enter into a valid contract, you should not take someone's consent by undue influence.
अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू भी तुम किसी का कंसेंट लेगा नहीं। ओवर हियर अनड्यू इन्फ्लुएंस होएगा तो वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। Free consent is a consent not which should not be taken either by coercion or it should not be taken by undue influence. Let us understand what do you mean by undue influence. Section number 16 of Indian Contract Act 1872 deals with undue influence. Section 16 बोलता है a contract is said to be induced by undue influence where the relations between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of another party and that person is taking an unfair advantage of that position. ये पूरे के पूरे डेफिनेशन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सेक्शन 16 बोलता है कि अगर ये 3 चीज फुलफिल हुआ तो मान लो undue influence हुआ है। If these 3 things comes into picture, then please conclude that the contract is being entered through undue influence. And whenever it is a contract entered through undue influence, it is a consent, but it is not a free consent. I repeat, it is a consent, but it is not a free consent. Contract बनेगा, हाँ जी, contract बनेगा, but वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो कौन से वो 3 चीज होते हैं जिसके कारण अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है? तो यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस इज पॉसिबल व्हेन देयर इज अ fiduciary relationship. What do you mean by fiduciary relationship? Fiduciary relationship is a relationship which is based upon trust and beliefs. ऐसा कोई रिश्ता जो ट्रस्ट के ऊपर निर्भर करता है। A relationship which is being based upon trust and beliefs, then such relationships are called as fiduciary relationships, wherein one of the party is under a position called as dominating position. One of the party is under a position called as dominating position. मतलब उस पार्टी का पोजीशन डोमिनेटिंग वाला है, wherein वो पार्टी अपने पोजीशन के थ्रू अनफेयर एडवांटेज ले रहा है. The person is taking unfair advantage of that position. So when does undue influence is possible? Undue influence is possible whenever there is a fiduciary relationship wherein one of the party is under a dominating position and he is able to take unfair advantage of that position. Are you understanding? What do you mean by fiduciary relationship? It is a relationship which is based upon trust and beliefs. जहां पर विश्वास होता है तो उस रिश्ते को हम फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहते हैं. See, you are a child. Being a child, whom do you trust the most? Being a child, can I say you trust your parents? So, the relationship between a child and his parent is nothing but a fiduciary relationship. In this relationship, who is into a dominating position? ये रिलेशनशिप में डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन है? कैन आई से इन दैट रिलेशनशिप योर पेरेंट्स आर इनटू डोमिनेटिंग पोजीशन? क्या आप अपने पेरेंट्स को डोमिनेट कर सकते हो? नहीं. बट क्या आपके पेरेंट्स आपको डोमिनेट कर सकते हैं? हाँ. वन फाइन डे अगर आप टीवी देख रहे हो, अचानक से आपके डैडी सामने आ जाते हैं, डैडी बोलते हैं चल 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 पढ़ाई करने बैठ, तो क्या तू उसका बात मानेगा ही नहीं मानेगा? अरे मानना पड़ेगा, वो डैडी जो ठहरे. Your dad can dominate you, but you cannot dominate your dad. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके डैडी टीवी देख रहे हैं तो आप क्या अपने डैडी के पास जाकर ऐसे बोलोगे, ए बाप टीवी क्या देखता है, चल रिमोट दे, तू काम करने जा? ना. We can't dominate them, but yes, our parents can dominate us. So, in a relationship of parent and child, yes, there is a fiduciary relationship. Yes,
one of the party is into a dominating position. Who is that party? Parents. If your parents are taking unfair advantage, अगर पेरेंट्स ने उस पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज लिया तो आपके पेरेंट्स ने आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है. प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली पेरेंट्स अपने पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज नहीं लेते हैं, बट अगर लिया तो इट इज एन अनड्यू इन्फ्लुएंस. योर पेरेंट्स हैव अप्लाइड अनड्यू इन्फ्लुएंस. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारा एक दोस्त है कार्तिक. आप तो उसको जानते ही रहोगे. अभी कार्तिक को प्यार हो गया. पूछोगे नहीं किसके साथ? कार्तिक को प्यार हो गया राखी सावंत के साथ. अब समझ में आया प्यार अंधा होता है. तो कार्तिक वॉज इन लव विथ राखी सावंत. यहाँ पर दोनों के दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने डिसाइड कर लिया है कि वो लोग शादी करेंगे. शादी करने से पहले कार्तिक, क्या आप अपने पेरेंट्स को पूछोगे हाँ कि क्या मैं राखी के साथ शादी कर सकता हूँ? तो इन अ सिमिलर वे कहने से राखी को भी अपने पेरेंट्स को पूछना पड़ेगा. यस. तो कार्तिक अपने पेरेंट्स के पास आया और बोला, मामी डैडी क्या मैं राखी सावंत के साथ शादी कर सकता है? माँ बाप ने बोल दिया नहीं, तू राखी सावंत के साथ शादी नहीं कर सकता है, बिकॉज वो लड़की तेरे लायक नहीं है. द गर्ल डज नॉट सूट यू. बीइंग अ चाइल्ड, अगर आपके पेरेंट्स ने बोला है कि वो लड़की तेरे लायक नहीं है, तो क्या आप अपने पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करोगे? यस. सो कैन आई से देयर इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप? यस. आपने फिर भी एक ट्राई किया. आपने बोला, मॉम डैड, राखी सावंत मेरे लायक बन जाएगी, प्लीज मेरा शादी राखी सावंत के साथ करवा दो ना. माँ बाप ने बोला, नो मीन्स नो. वो लड़की तेरे लायक नहीं है, मतलब नहीं है. अगर तूने राखी सावंत के साथ शादी किया तो हम तुझे घर से निकाल देंगे. सी डोमिनेटिंग पोजीशन. आपने बोला नहीं 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 नहीं, घर से मत निकालो, घर से मत निकालो. अगर मैं राखी सावंत के साथ शादी नहीं करेगा तो मैं शादी किसके साथ करेगा? तो आपके पेरेंट्स ने बोला, यू गेट मैरिड. सॉरी, कार्तिक के पेरेंट्स ने बोला, कार्तिक आप शादी करोगे विद अ गर्ल कॉल्ड एज डॉली बिंद्रा. तो कार्तिक ने पूछा, डॉली बिंद्रा के साथ शादी क्यों करवा रहे हो? तो माँ बाप ने बोला, डॉली बिंद्रा ही वो लड़की है जो तुझे सूट करती है. Being a child, will you trust your parents now? Yes. Because in a relationship of parent and child, there is always a trust involved. That is nothing but a fiduciary relationship. यहाँ पर एक्चुअली कार्तिक के लिए राखी सावंत बेस्ट थी, बट माँ बाप ने क्या बोल दिया? डॉली बिंद्रा बेस्ट है. सर माँ बाप ने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज कार्तिक के पेरेंट्स को मालूम था कि शादी के टाइम पे राखी सावंत के पेरेंट्स अच्छा खासा गिफ्ट नहीं देंगे, बट डॉली बिंद्रा के पेरेंट्स शादी के टाइम पे अच्छा खासा गिफ्ट देंगे. कैन आई से कार्तिक के पेरेंट्स कार्तिक के थ्रू अनफेयर एडवांटेज ले रहे थे. ये चीज कार्तिक को मालूम नहीं था. कार्तिक ने डॉली बिंद्रा के साथ शादी करने के लिए यस बोल दिया. शादी के 2 दिन पहले कार्तिक को पता चला कि उसके पेरेंट्स उसके थ्रू अनफेयर एडवांटेज ले रहे थे. उसके पेरेंट्स ने कार्तिक का कंसेंट शादी करने के लिए अनफेयर एडवांटेज के लिए लिया गया है. तो कैन आई से ओवर हियर कार्तिक के पेरेंट्स ने अनड्यू इन्फ्लुएंस इंप्लाई किया है. Because there was a fiduciary relationship, there was a dominating position, and yes, there was an unfair advantage. So over here, can I say कार्तिक का शादी करने का डिसीजन, कार्तिक का शादी करने का परमिशन अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू लिया गया था? तो भैया अनड्यू इन्फ्लुएंस कभी भी चलता नहीं है. अनड्यू इन्फ्लुएंस कभी भी चलता नहीं है. ओवर हियर लॉ ने सामने से बोल दिया है कि भैया ऐसे कुछ रिश्ते हैं जिधर अनड्यू इन्फ्लुएंस पॉसिबल हो सकते हैं. अ रिलेशनशिप बिटवीन लॉयर एंड क्लाइंट, अ रिलेशनशिप बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, अ रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, etc. These are the relationships where there can be a possibility of undue influence. ये 3 ऐसे रिलेशनशिप है जिधर अनड्यू इन्फ्लुएंस होने का चांस है. जरूरी नहीं है कि हर वक्त इधर अनड्यू इन्फ्लुएंस होएगा, बट हाँ, लॉयर एंड क्लाइंट के बीच में, डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है. एंड अगर हुआ तो इन दैट केस द कंसेंट इज नॉट अ फ्री कंसेंट, इट इज अ कंसेंट.
उधर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बट कोई भी प्रकार का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लॉ ने सामने से बोल दिया कि ऐसे कुछ रिश्ते भी है जिधर अनडू इन्फ्लुएंस पॉसिबल नहीं है। देयर आर सर्टेन रिलेशनशिप्स वेयर इन अनडू इन्फ्लुएंस इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल अ रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ का एक रिलेशनशिप है जिधर अनडू इन्फ्लुएंस पॉसिबल नहीं हो सकता है, बिकॉज इन अ रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ लॉ अज्यूम करता है कि हस्बैंड एंड वाइफ का इक्वल स्टेटस होता है, नो वन इज अंडर अ डोमिनेटिंग पोजीशन। सर बट मेरा बाजू वाला अंकल आंटी को कितना डोमिनेट करता है। अरे नॉनसेंस, इंडिया का लॉ तेरे बाजू वाले के घर को देख के नहीं बनता है, ये जनरल एस्पेक्ट है कि हस्बैंड एंड वाइफ आर इनटू एन इक्वल स्टेटस। सो undue influence is not possible in case of certain relationships, for example husband and wife. Undue influence is also not possible in case of debtor and creditor. अरे बट सर क्रेडिटर तो अपना पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज ले सकता है। क्रेडिटर ने जब भी लोन दिया था तब बोला था 10% ब्याज लगाऊंगा, बट फिर बोलता है नहीं नहीं अभी तो 100% ब्याज लगाऊंगा। नहीं, क्रेडिटर ऐसा नहीं बोल सकता है, बिकॉज डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जनरली रिटर्न फॉर्मेट में होता है, तो क्रेडिटर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को फ्यूचर में चेंज कर सकता नहीं है। तो हस्बैंड एंड वाइफ, डेटर एंड क्रेडिटर, वैसे ही लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। सर लैंडलॉर्ड तो सर अनफेयर एडवांटेज ले सकता है। जब टेनेंट उसके घर में रहने आया था तब लैंडलॉर्ड ने बोला था कि रेंट लूंगा 10,000 रुपया पर मंथ। सर फिर लैंडलॉर्ड बोलता है कि अभी से मैं रेंट लगाऊंगा 1 लाख रुपीज पर मंथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में जो अग्रीमेंट होता है वो भी रिटर्न फॉर्मेट में होता है। उधर फ्यूचर में लैंडलॉर्ड अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकता है। तो लॉ ने सामने से बोल दिया है कुछ रिलेशनशिप्स में अनड्यू इन्फ्लुएंस पॉसिबल है। एग्जांपल के तौर पे लॉयर एंड क्लाइंट, डॉक्टर एंड पेशेंट, टीचर एंड स्टूडेंट एक्सेट्रा। उसी लॉ ने सामने से बोल दिया है कि ऐसे कुछ रिलेशनशिप्स है जिधर अनड्यू इन्फ्लुएंस पॉसिबल नहीं भी हुए, अनड्यू इन्फ्लुएंस पॉसिबल नहीं हो सकता है। दैट इज फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ, डेटर एंड क्रेडिटर एंड लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। जब भी तुम अनड्यू इन्फ्लुएंस का बात करेगा तो उधर कोई प्रकार का मेंटल फोर्स इन्वॉल्व हुआ रहेगा, मेंटल प्रेशर रहेगा, मॉरल प्रेशर रहेगा। कोवर्जन में फिजिकल फोर्स होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल फोर्स होता है। याद करो, कोवर्जन में स्ट्रेंजर हो सकता था बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में कभी भी कोई स्ट्रेंजर नहीं हो सकता है। अरे यार कैसे हो सकता है यार, कोई बाहर वाला आकर तेरे को डोमिनेट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। जब वो डोमिनेट ही नहीं कर सकता है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता है। तो कोवर्जन में स्ट्रेंजर्स आर पॉसिबल बट अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन नॉट बी डन बाय अ स्ट्रेंजर। अब याद करो, कार्तिक को जब पता चला था कि उसके माँ बाप ने कांड किया है, कार्तिक को जब पता चला था कि उसके माँ बाप उसके थ्रू अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं, डॉवरी ले रहे हैं, तो क्या कार्तिक अपने पेरेंट्स के खिलाफ केस कर सकता था? हाँ, बट क्या कार्तिक के पेरेंट्स कार्तिक के ऊपर केस कर सकते थे? नहीं। तो सोचो जब भी तुम अनड्यू इन्फ्लुएंस करोगे तो इन दैट केस कंसेंट है बट फ्री कंसेंट नहीं है। अरे अनड्यू इन्फ्लुएंस करोगे तो कंसेंट है बट फ्री कंसेंट नहीं है। अरे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो सोच के बताओ दोस्त, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। Undue influence में भी there is a voidable contract. So whether you talk about coercion or whether you talk about undue influence, ये दोनों situations में consent है but free consent नहीं है। अरे contract बनेगा but valid contract नहीं बनेगा, voidable contract बनेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या आप लोग कभी भी कोई भी प्रकार का कोवर्जन यूज करोगे? नहीं सर। अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज करोगे? नहीं सर। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 15 एंड सेक्शन नंबर 16, जिसने बता दिया कि इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वी रिक्वायर अ फ्री कंसेंट, एंड फ्री कंसेंट इज अ कंसेंट व्हिच शुड नॉट बी टेकन either by coercion or it should not be taken by undue influence. अगर coercion या तो undue influence इन्वॉल्व हुआ है तो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बट वो कॉन्ट्रैक्ट एक voidable कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। आर यू श्योर? सो यहाँ पर हमने खत्म कर दिया सेक्शन नंबर 15 एंड सेक्शन नंबर 16। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में whenever you want to enter into a valid contract, then we require a free consent. And free consent एक ऐसा consent होता है which should not be taken either by
coercion, or it should not be taken by undue influence. Now we are going to understand fraud. लॉ बोलता है कि फ्री कंसेंट शुड नॉट बी टेकन थ्रू फ्रॉड. आप कभी भी किसी का कंसेंट फ्रॉड के थ्रू नहीं ले सकते हो. अगर आपने किसी के साथ फ्रॉड किया, अगर आपने किसी के साथ फ्रॉड किया एंड अगर आपने उसका कंसेंट लिया, तो इन दैट केस इट वोंट बी कंसीडर्ड एज अ फ्री कंसेंट. वहां पर कॉन्ट्रैक्ट जरूर बनेगा, बट वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. So, in order to enter into a valid contract, do you require to do fraud? No. कभी भी आप किसी का कंसेंट फ्रॉड के थ्रू नहीं ले सकते हो. तो फ्रेंड्स, what do you mean by fraud? The provision of fraud is given under section number 17 of Indian Contract Act 1872. Fraud मतलब it is a representation. The term fraud is defined as an intentional or deliberate or willful misstatement of facts. मतलब अगर आपने जानबूझ के झूठ बोला, अगर आपने जानबूझ के झूठ बोला, तो आपने एक किस्म का फ्रॉड किया है. It is something which is intentional, which is deliberate, or which is willfully done. Any kind of a misstatement of fact, any kind of misstatement of facts which were material for the formation of the contract. ऐसा कोई चीज जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मटीरियल था, इंपॉर्टेंट था, और उसी मटीरियलिटी में आपने कोई प्रकार का मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट किया है, वो भी जानबूझ के, तो इन दैट केस यू हैव डन अ फ्रॉड. इन शॉर्ट, fraud is nothing but false representation of a fact made willfully. I repeat, false representation of a fact made willfully. अगर आपने जानबूझ के झूठ बोला है एंड अगर आपने किसी का कंसेंट लिया है, तो आपने उस बंदे के साथ फ्रॉड किया है. आर यू श्योर? तो प्रैक्टिकल लाइफ में whenever you want to enter into a valid contract, practical life में whenever you want to enter into a valid contract, you are not required to take the consent through fraud. You are not required I'm sorry, you are not required to take the consent through fraud. Are you sure? Over here, fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract with an intent to deceive another party or to induce him to enter into a contract. अगर आप किसी को जाल में फंसाना चाहते हो, आपका इंटेंशन है कि भैया वो बंदा मेरे जाल में फंस जाना चाहिए, एंड वो चीज करने के लिए आप कोई प्रकार का झूठ बोलते हो, वो भी जानबूझ के, देन यस यू आर डूइंग फ्रॉड. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टेशनरी वाला है. आई एम अ स्टेशनरी वाला. तो pretty obviously can I say I will be dealing with stationery products. one fine day एक सपना नाम की लड़की मेरे दुकान में आई और बोली, कुणाल सर, क्या आपके पास रेड मार्कर पेन है? मैं बोला, हाँ, मेरे पास रेड मार्कर पेन है. अब मेरे दुकान में एक रेड मार्कर पेन था जो डिफेक्टिव था. उसका ढक्कन गुम हो गया था. अब आप सोचिए फ्रेंड्स, कैन आई सेल अ रेड मार्कर पेन विच इज विदाउट अ टॉप? एक ऐसा लाल मार्कर पेन जिसमें कोई ढक्कन ही नहीं है, तो कोई खरीदेगा क्या? नहीं, क्योंकि बिना ढक्कन का मार्कर पेन बोलेगा तो उसके अंदर का इंक सूख जाएगा. इंक सूख जाएगा तो इट इज समथिंग विच इज वेस्ट. कोई बंदा ऐसा मार्कर पेन खरीदेगा नहीं. तो एज अ बिजनेसमैन कैन ऐसे मुझे लॉस हो जाएगा. अब यहाँ पर मैंने एक चक्रव्यूह चलाया. मैंने बोला, यस यस सपना, मेरे पास तो एक खास किस्म का रेड मार्कर पेन है.
सपना बोली ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या खास बात है। तो मैंने वो मार्कर पेन सपना को दिखाया। सपना ने मार्कर पेन को देखा और बोला सर इसमें तो ढक्कन ही नहीं है। मैंने बोला सपना इसमें ढक्कन है बट दिखता नहीं है। ये एक ऐसा मार्कर पेन है विच इज हैविंग अ टॉप बट इट इज नॉट विजिबल। सपना बोली वाह ऐसा भी मार्कर पेन आता है। मैंने बोला हाँ ऐसा भी मार्कर पेन आता है। मैंने बोला सपना यूजुअली इसका कीमत 1000 रुपया होता है बट तू मेरी रेगुलर कस्टमर है तो जा मैं तेरे को ये मार्कर पेन 800 रुपये में देता हूँ। सपना तो भावुक हो गई कि यार इतना यूनिक फीचर वाला मार्कर पेन डिस्काउंट में मिल रहा है, चलो चलो ले लेती हूँ। कैन आई से मैंने सपना के साथ कोई फ्रॉड किया है। ओवर ईयर मैंने सपना को एक ऐसा मार्कर पेन बेचा जो डिफेक्टिव था। यहाँ पर मुझे इस चीज का जानकारी था बट फिर भी मैंने ये चीज के बारे में सपना को बताया नहीं। इनफैक्ट मैंने तो सपना को झूठ बोला, वो भी जानबूझ के, बिकॉज माई इंटेंशन वॉज टू डिसीव हर। माई इंटेंशन वॉज टू डिसीव हर। मैं उसको जाल में फंसाना चाहता था। अगर ऐसा कोई चीज आपने किया है तो आपने एक्चुअली फ्रॉड किया है। क्या आप फ्रॉड के थ्रू किसी के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए वी रिक्वायर अ फ्री कंसेंट एंड फ्री कंसेंट इज अ कंसेंट। Free consent is a consent which should not be taken either by coercion or undue influence or fraud. Are you understanding? So whenever you are having an intention or you are doing something which is deliberately or willfully, you are having a misstatement of facts wherein you are doing all this activity with an intention to deceive another person, or you are inducing that person to enter into a contract, then you are trying to do a fraud. यहाँ पर अगर आप एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करते हो, अगर आप कोई चीज छुपाते हो, अगर आप कोई प्रकार का सच छुपाते हो तो वो भी एक प्रकार का फ्रॉड माना जाता है। जानबूझ के झूठ बोलना तो फ्रॉड है ही है, बट इवन इफ यू आर एक्टिवली कंसीलिंग अ फैक्ट, मतलब अगर आप जानबूझ के कोई सच छुपाते भी हो तो भी इट इज कंसिडर्ड टू बी अ फ्रॉड। In fact, a promise which is made without any intention of performing it. Even if you make a promise wherein you are having an intention कि मैं ये promise perform नहीं करने वाला है, फिर भी चल अभी फिलहाल के लिए promise कर देता हूँ, बाद का बाद में देखा जाएगा, ऐसा भी अगर आपने किया है तो you are doing a fraud. फॉर एग्जाम्पल करण नाम का एक बंदा है, उसने अपने माँ बाप को प्रॉमिस किया, करण ने अपने माँ बाप को प्रॉमिस किया कि वो 10 दिन के बाद पढ़ाई करने बैठ जाएगा। He made a promise, but करण फिर मन ही मन में सोचता है 10 दिन तो जाने दे, फिर मैं देखता है माँ बाप क्या बोलते हैं। तो कैन आई से करण इज मेकिंग अ प्रॉमिस विदाउट हैविंग एन इंटेंशन, विदाउट हैविंग एन इरादा टू परफॉर्म दैट थिंग, देन इन दैट केस करण इज ऑल्सो डूइंग अ फ्रॉड. So whether you are having an active concealment of a fact or you are making a promise without any intention of performing it, then even in that case, you are doing a fraud. Any other act fitted to deceive, in short, cheating करना. अगर आप किसी के साथ चीटिंग भी करते हो तो चीटिंग करना भी एक प्रकार का फ्रॉड होता है. Over here, any such act or omission as the law specifically declares to be fraudulent. अगर कोई लॉ में लिखा गया है कि फलाना फलाना चीज फ्रॉडुलेंट है और आपने अगर वही चीज किया तो इन शॉर्ट आपने एक्चुअली फ्रॉड किया है. फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट में लिखा गया है कि जब भी कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगा तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होएगा वो ट्रू होना चाहिए. If the statements are not true,
then in that case the directors are trying to do a fraudulent activity. मतलब यहाँ पर अगर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ने ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस इशू किया है जिसके अंदर के स्टेटमेंट अनट्रू है, अंदर के स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड है, तो इन दैट केस डायरेक्टर्स आर ट्राइंग टू डू फ्रॉड विद द इन्वेस्टर्स. So fraud includes active concealment of fact. It also includes a promise made without an intention of performing it. Fraud also includes cheating. Even if you are doing something which is fraudulent by law, then even it is considered as a fraud. Last, person making the statement does not believes it as true. जो भी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है उसको मालूम है कि उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो अनट्रू है, फिर भी वो स्टेटमेंट दे रहा है, means that person is trying to do fraud. So over here, whenever you are doing a fraud, then in that case there is nothing called as a free consent. Are you understanding? तो first, फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फ्रॉड का मतलब होता है false representation of a fact made willfully. जानबूझ के झूठ बोलोगे तो वो एक प्रकार का फ्रॉड है, wherein you are having an intention to deceive someone. Are you understanding? Over here, active concealment of fact किया मतलब अगर आपने कोई सच छुपाया है तो आपने एक प्रकार का फ्रॉड ही किया है. अगर आपने किसी को ऐसा कोई प्रॉमिस किया है without having an intention to perform that promise, then even that amounts to a fraud. Even if you are doing a cheating, it is a fraud. Any kind of an act or omission which has been declared as fraudulent by a law, it is considered as a fraud. The person who is making the statement believes the statement to be not true, then also the person is trying to do a fraud. जब भी आपने फ्रॉड किया, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने सपना को एक ऐसा मार्कर पेन बेचा जो डिफेक्टिव था, बिना ढक्कन वाला मार्कर पेन मैंने बेचा जो ऐसा बोला कि भैया ढक्कन है बट दिखता नहीं है, तो कहने से मैंने सपना के साथ फ्रॉड किया है. तो इन दैट केस मेरे और सपना के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या सपना मेरे खिलाफ केस कर सकती है? यस, बट क्या मैं सपना के खिलाफ केस कर सकता है? नो. तो याद करो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, याद करो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट which has been entered wherein one party can enforce the contract but another party cannot enforce the contract, then such contract is called as a voidable contract. So friends, अगर आपने किसी का consent फ्रॉड के थ्रू लिया है, even if you have taken a consent through fraud, then in that case it is a consent but not a free consent. There will be a contract but not a valid contract. So फ्रॉड करने के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है वो वैलिड नहीं होता है, वो voidable होता है. सो कोवर्जन करो या अनड्यू इन्फ्लुएंस करो या फ्रॉड करो, द कॉन्ट्रैक्ट विच गेट्स फॉर्म्ड इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ voidable कॉन्ट्रैक्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पर एक रूल है जो बोलता है mere silence does not amount to fraud. अगर आप चुप बैठे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रॉड कर रहे हो. फ्रॉड का मतलब क्या होता है? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट मेड विलफुली. अगर आप झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, जानबूझ के बोलते हो, तो आप फ्रॉड कर रहे हो. बट अगर मैं कुछ बोल ही नहीं रहा है, इफ आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट कीपिंग मम, आई एम साइलेंट, सो mere silence does not amount to fraud. अगर कोई व्यक्ति चुप बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है. अरे चुप बैठा है मतलब वो कुछ बोल ही नहीं रहा है. जब कुछ बोल ही नहीं रहा है तो सच और झूठ का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है. फ्रॉड कब होता है? जब आप जानबूझ के झूठ बोलते हो. बट इफ यू आर साइलेंट, देन साइलेंस
does not amount to fraud. रूल क्या है? mere silence does not amount to fraud. चुप बैठने का मतलब फ्रॉड कहलाता नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओवर हियर अगर मैंने सपना के साथ फ्रॉड किया था तो कैन आई से सपना कैन फाइल अ केस अगेंस्ट मी? Yes, but can I file a case against her? No. So it was a voidable contract. Who is the aggrieved party over here? Sapna. Over here, can Sapna terminate the contract? Yes. अगर सपना को बाय चांस कोई लॉस भी हुआ है ना तो सपना मेरे पास से वो लॉस का अमाउंट रिकवर कर सकती है. So whenever you talk about fraud, aggrieved party can terminate the contract and that aggrieved party can also claim damages. But अगर आप चुप बैठे हो तो चुप बैठने का मतलब फ्रॉड नहीं होता है. mere silence does. So friends, over here फ्रॉड के अंदर हमारे पास एक रूल है जो बोलता है mere silence does not amount to fraud. रूल क्या बोलता है? mere silence does not amount to fraud. pretty obvious ना. फ्रॉड का मतलब क्या होता है कि अगर आपने जानबूझ के झूठ बोला. अरे बोला तो ना. when I am just keeping silence तो silence does not amount to fraud. Silence does not amount to fraud. रूल क्या है? और एक बार आप मेरे साथ बोलिए. Silence does not amount to fraud. Are you understanding? अब आपको तो मालूम ही है कि जब भी हमारे पास कोई प्रकार का रूल होता है तो every rule has got certain exceptional cases. Yes or no? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रूल था स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू. बट इन एक्सेप्शनल केसेस हम क्या बोल देते थे? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू. वैसे ही वी हैड गॉट अ रूल कॉल्ड एज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. बट इन एक्सेप्शनल केसेस नो कंसिडरेशन स्टिल देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट. अब यहाँ पर हमारे पास एक रूल है जो बोलता है mere silence does not amount to fraud. I repeat, mere silence does not amount to fraud. But इसी रूल के कुछ exceptional cases है. एंड जब मैं बोलूं exceptional cases तो ये दोनों के दोनों exceptional cases में silence will amount to fraud. Generally, silence does not amount to fraud, but in these two exceptional cases, silence amounts to fraud. Exceptional case number 1, duty of a person to speak. जब आपका ड्यूटी होता है बोलना फिर भी आप नहीं बोलते हो तो in that case your silence will amount to fraud. For example, whenever you are into a fiduciary relationship, that is a relationship which is based upon trust, beliefs. It is a relationship which is based upon a rule called as uberime fidei. I repeat, uberime fidei. That is a relationship which is based upon good faith. जैसे कि अगर आपने पार्टनरशिप्स देखा रहेगा ना तो पार्टनरशिप इज अ कंसेप्ट व्हिच इज बेस्ड अपॉन उबेरी में फिदाई, दैट इज अपॉन गुड फेथ. जिधर हर एक पार्टनर का ड्यूटी होता है कि वो दूसरे पार्टनर्स के साथ हर एक चीज का शेयरिंग करेगा अबाउट द फैक्ट्स as well as whatever kind of the facts the partner knows, that facts shall be shared with another partner. फिर भी अगर तुम वो फैक्ट्स शेयर नहीं करते हो तो इन दैट केस यू आर डूइंग अ फ्रॉड. तुम वहां पे ऐसा नहीं बोल सकते हो कि साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. अरे भैया, यू आर अ पार्टनर, इट वाज योर ड्यूटी टू स्पीक एंड व्हेन इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक देन आल्सो यू डोंट स्पीक, देन इन दैट केस साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड. इवन इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिजेस, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लड़का ऑलरेडी शादीशुदा था बट उसने ये चीज लड़की वालों को नहीं बताया
तो यहाँ पर लड़का फिर ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं तो साइलेंट था एंड साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। अरे भैया, तुम किसी के साथ शादी करने जा रहे थे तो तुम्हें ये चीज तो बोलना ही चाहिए था कि तुम ऑलरेडी शादीशुदा थे। ये तुम्हें किसी ना ये तुम्हें बोलना ही पड़ता है। फिर भी अगर तुम नहीं बोलते हो तो इन दैट केस योर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। रूल क्या है? साइलेंस does not amount to fraud, does not amount to fraud. But when it is your duty to speak, then also you don't speak, then in that case, silence amounts to fraud. Second exceptional case आता है where silence itself is equivalent to speech. मतलब तुम्हारा साइलेंस एक ऐसा प्रकार का साइलेंस है which is as equivalent that you are speaking. वन फाइन डे मुझे स्विमिंग करने का मन हो गया तो मैं सीधा का सीधा चला गया एक सी साइड रिवर पे चला, मैं सीधा का सीधा चला गया दरिया किनारे। जैसे मैं दरिया किनारे पहुंचा तो इट वाज अ प्राइवेट बीच। तो मैं सीधा का सीधा बीच मैनेजर को पूछा कि इज दिस बीच सेफ फॉर स्विमिंग, इज दिस बीच सेफ फॉर स्विमिंग। तो यहाँ पर वो जो बीच मैनेजर था उसने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं किया, उसने मेरे को देख के स्माइल दिया। मैंने बोला इफ यू आर स्माइलिंग देन आई एम अज्यूमिंग दैट द बीच इज सेफ फॉर स्विमिंग। फिर भी वो बंदा कुछ नहीं बोल रहा था और उसने मुझे वापस से सिर्फ एक स्माइल दिया। मैंने बोला ओके यू आर स्माइलिंग व्हिच मींस बीच इज सेफ फॉर स्विमिंग। मैं सीधा का सीधा बीच के अंदर चला गया स्विमिंग करने के लिए। दैट बीच was not safe for swimming actually. The beach comprised of numerous number of crocodiles. मगरमच्छ से भरा पड़ा था वो बीच। बट कैन आई सो मैनेजर ने मुझे बताया नहीं। तो मैंने बोला मैनेजर तूने मेरे साथ फ्रॉड किया है। मैनेजर बोला अरे सर मैं तो चुप बैठा था, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। अरे मैनेजर मैं तेरे को बोल के गया था कि इज दिस बीच सेफ फॉर स्विमिंग, तूने स्माइल भी किया तो योर साइलेंस was equivalent that you are speaking, and when your silence is equivalent that you are speaking, then in that case silence amounts to fraud. Generally, silence does not amount to fraud, but whenever it is your duty to speak, whenever silence itself is equivalent to speech, then in both of these cases, silence amounts to fraud. And whenever you are doing a fraud, so any contract entered through a fraud, then in that case, it is a consent but it is not a free consent. उसमें उसमें कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो आप सोचिए फ्रॉड के थ्रू एंटर किया गया कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? क्या मैं बीच मैनेजर के खिलाफ केस कर सकता है? यस। क्या वो लड़का जो ऑलरेडी शादीशुदा था फिर भी उसने लड़की के घर वालों को नहीं बताया अपने प्रीवियस शादी के बारे में, तो क्या लड़की वाले वो लड़के के खिलाफ केस कर सकते हैं? यस। जब मैंने सपना को बोला था कि भैया ये नए किस्म का मार्कर पहने जो एक्चुअली झूठ था, तो क्या सपना मेरे खिलाफ केस कर सकती है? यस। बट क्या मैं सपना के खिलाफ केस कर सकता है? नो। तो इन दैट केस अगर आपने किसी के साथ फ्रॉड किया है तो इन दैट केस जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, वेरी गुड, voidable contract. So any contract which has been entered through fraud, I repeat, any contract which is entered through fraud, that contract will be considered as a voidable contract. Are you sure? So practical life में you should not take someone's consent either through coercion or through misrepresentation or through fraud. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिसरिप्रेजेंटेशन करना, दैट इज सेक्शन नंबर 18। लॉ बोलता है कि अगर आपने किसी के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन भी किया है तो इन दैट केस यू आर ट्राइंग टू गेट अ कंसेंट व्हिच इज नॉट अ फ्री कंसेंट। मिसरिप्रेजेंटेशन का अगर सिलसिला आएगा तो इवन दैट won't be considered as a free consent. What do you mean by misrepresentation? Misrepresentation का मतलब होता है कि it is a misstatement which is done
innocently. It is a misstatement done innocently. यहाँ पर जब मैं फ्रॉड बोल रहा था तो कैन आई से फ्रॉड का मतलब हो रहा था इट वॉज अ मिसस्टेटमेंट विच वॉज डन इंटेंशनली. So whenever there is a misstatement which is done out of innocence, wherein the person who has done that misstatement does not have an intention to deceive another person, then it will be considered as misrepresentation. Friends, fraud and misrepresentation में there is a difference. Fraud एक ऐसा प्रकार का मिसस्टेटमेंट होता है जो डेलिबरेटली किया जाता है. मिसरिप्रेजेंटेशन एक ऐसा प्रकार का मिसस्टेटमेंट होता है which is done out of innocence. In case of fraud, the intention is to deceive another person. But in case of misrepresentation, ऐसा कोई intention होता नहीं है. Over here, whenever you are representing a statement, you are having an intention to induce another person. But if that representation has been done untruly, मतलब वो एक ऐसा misrepresentation हो गया है जो आपने innocently किया है, तो फिर वो misrepresentation माना जाता है. Are you understanding? Fraud करोगे तो aggrieved party के पास दो चीज होता है. He can terminate the contract and he can also claim damages. But misrepresentation किया तो in that case aggrieved party can only terminate the contract, but वो damages claim कर सकता नहीं है. क्योंकि जिस व्यक्ति ने misrepresentation किया था, he did not had an intention to deceive you. Then how can you claim damages from that person? So, under fraud, the aggrieved party can claim damages, but under misrepresentation, aggrieved party cannot claim damages. Over here, इधर कोई भी प्रकार का इंटेंशन नहीं होता है किसी को चीट करने का, तो ये चीज आईपीसी के द्वारा फॉरबिड नहीं किया गया है. फ्रॉड is forbidden by Indian Penal Code, but misrepresentation is not forbidden by Indian Penal Code because you don't have an intention to cheat another person. जब फ्रॉड कर रहे थे, दो बंदा जो स्टेटमेंट्स दे रहा था उसको मालूम था वो ट्रू नहीं है. He was aware that the statements were not true, but in misrepresentation, the person making the statement believes it as true. उसको लग रहा है वो सच है, क्योंकि उसने जानबूझ के झूठ नहीं बोला है, उसने तो आउट ऑफ इनोसेंटली बोल दिया है. उसको खुद को लग रहा था कि वो स्टेटमेंट जो वो बोल रहा है वो सच था. That is, the person making the statement believes itself to be a true statement. For example, if I'm asking you an address and by chance you give me a wrong direction in order to reach to that address, तो क्या आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है क्या? नो, यू हैव जस्ट डन अ मिसरिप्रेजेंटेशन. इसके लिए मैं क्या आपके पास से कोई डैमेजेस मांगूंगा? नहीं. इनफैक्ट आपने जो डायरेक्शन दिया था मैं वो डायरेक्शन सिंपली फॉलो करेगा नहीं. आई विल टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बट आई कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फ्रॉम यू. सो fraud and misrepresentation में there is a difference. Fraud, it is done deliberately. Misrepresentation is done out of innocence. Over here, fraud में the intention is to deceive, but misrepresentation में there is no such intention to deceive another person. Fraud में aggrieved party can terminate the contract and claim damages, but misrepresentation में the aggrieved party can only claim damages. Sorry, the aggrieved party can only terminate the contract but cannot claim damages. Fraud में it was forbidden by Indian Penal Code, but misrepresentation is not forbidden by Indian Penal Code. Fraud में the person making the statement believes that the statement is untrue, then also he is putting down such statements. But misrepresentation में the person giving that misstatement believes it to be a true statement. Are you understanding? Whether you do a fraud or whether there is a misrepresentation, it won't be considered
as a free consent. In fact, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट will be considered as a voidable contract, wherein the aggrieved party can file a case against the defaulting party. You can just file a case over here, but you cannot claim damages. Are you understanding? तो यहाँ पर हम लोग ने खत्म किया 4 concept: coercion, undue influence, fraud, and we have also completed misrepresentation. So whether you talk about coercion, whether you talk about undue influence, whether you talk about fraud, और whether you talk about misrepresentation, ये 4 में से अगर कौन सा भी एक चीज का हेल्प लिया तो in that case it is a consent but not a free consent. In fact, ये चारों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. इनफैक्ट ये चारों केस में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है is termed as a voidable contract. Are you understanding? Let us go on to the last topic, that is mistake, which is given under section number 20 and section number 22. सर 18 के बाद आप सीधा 2022 पे चले गए. सर सेक्शन 19 किधर है? सेक्शन 19 बोलता है कि इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज बीन एंटर्ड थ्रू कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, देन सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया था. सेक्शन नंबर 20 एंड 22 बोलता है मिस्टेक, दैट इज एरर, दैट इज भूल. भूल से भी तुम किसी का कंसेंट भूल से मत लेना. You should not take someone's consent through a mistake. If the consent is taken through a mistake, then such consent won't be considered as a free consent. Friends, whenever you talk about mistake, भूल दो प्रकार का होता है. Mistake can either be a mistake of law or it can either be a mistake of fact. Mistake are of two types: mistake of law, mistake of fact. जब मैं बोलूं mistake of law तो it is a mistake which is towards the law. But जब मैं बोलूं mistake of fact तो it is a mistake towards the main subject matter. It is the mistake towards the कारण जिसके कारण तुम contract enter करने वाला है. So mistake are of two things: mistake of law, mistake of fact. अगर मैंने बोला कोई गलती कानून के लिए हुआ है तो इट इज अ मिस्टेक ऑफ लॉ, यू हैव अ मिस्टेक टुवर्ड्स द लॉ. अगर मैंने बोला मिस्टेक एक ऐसी चीज के लिए हुआ है जिसके कारण हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा था, देन दैट मिस्टेक इज कॉल्ड एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. लेट अस अंडरस्टैंड मिस्टेक ऑफ लॉ फर्स्ट. जब मैं बोलूं मिस्टेक ऑफ लॉ तो उसमें दो चीज बन जाता है: मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ. भैया क्या तुम कभी भी ऐसा बोल सकते हो गलती हो गया यार, इंडिया का लॉ तोड़ दिया, आई एम सॉरी, अगली बार नहीं करेगा? नो नो नो, you cannot be excused. Whenever there is a mistake of Indian law, then such mistake is not excusable because of ignorantia juris non excusat. The very first lecture of mine, ignorance of law is not an excuse. तुम कभी भी ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता है कि भैया गलती हो गया, लॉ नहीं मालूम था. नो, सच काइंड ऑफ ए मिस्टेक इज नॉट एक्सक्यूजेबल. तो सर आपने कॉन्ट्रैक्ट वैलिड क्यों रखा है? कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड क्यों रखा है? यहाँ पर अगर आप मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ करते हो, मतलब तुम जिस देश में रहते हो उस देश का तो कानून तुम्हें मालूम होना ही चाहिए. अगर तुम्हें उस देश का कानून नहीं मालूम था तो हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं बना देगा. इन दैट केस यू डू वन थिंग, you rectify that mistake and then you perform the contract. जिस चीज के लिए तुम्हारी मिस्टेक हुई थी, जिस प्रोविजन के कारण वो गलती हो रहा था, तो भैया उस कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई करो एंड फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो. हेंस हमने कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखा है. तो मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ नॉट एक्सक्यूजेबल बिकॉज ऑफ इग्नोरेंशिया juris non excusat. However, you need to rectify that mistake. I repeat, you need to rectify that mistake and then you have to perform that contract. बट अगर मैं मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ का बात करेगा, अब मैं हूं इंडियन तो क्या मुझे पाकिस्तान का लॉ मालूम ही होना चाहिए? नहीं. अगर मैं इंडिया में रहता हूं तो शुड आई बी बाउंड
to know the law of every country in this world? No. I am being asked, it is my duty to have knowledge of the law of a country where I reside. जिस देश में मैं रहता हूँ उस देश का कानून मुझे मालूम होना चाहिए. अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट के कारण कोई फॉरेन कंट्री का लॉ टूट रहा है तो भैया शायद से मुझे माफ किया जाएगा, मतलब मुझे कोई सजा नहीं दिया जाएगा, बट उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड रखा जाएगा, मतलब तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना है. इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट. बट हाँ, तुम्हें कोई प्रकार का सजा दिया जाएगा नहीं. इट इज एक्सक्यूज्ड. सो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ is excusable, but you cannot perform the contract. कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है बट अब परफॉर्म नहीं कर पाओगे. इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. तो याद करो, स्टार्टिंग में वैलिड था, फिर इम्पॉसिबल हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? वॉइड कहलाता है. सो फ्रेंड्स, मिस्टेक कितने प्रकार का होता है? दो. मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट. अगर मिस्टेक ऑफ लॉ का बात करूं तो इट इज अगेन ऑफ टू थिंग्स. इट कैन बी अ मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ or it can be a mistake of foreign law. If it is a mistake of Indian law, not excusable, punish the culprit. Rectify the contract and then perform the contract so that the contract remains valid. बट अगर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है, अरे भैया तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के कारण अगर अमेरिका का कोई लॉ टूट रहा है तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगा इस बात का. यू हैव बीन एक्सक्यूज्ड, बट प्लीज उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का नहीं है, हेंस इट इज वॉइड. अगर मैं बोलूं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब इट इज अ मिस्टेक टुवर्ड्स द मेन सब्जेक्ट मैटर फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड, देन इट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो प्रकार का होता है. इट कैन आइदर बी अ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट और इट कैन आइदर बी अ यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट. अगर एक ही व्यक्ति की भूल हुई है टुवर्ड्स द मेन सब्जेक्ट मैटर, देन इट इज यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट. बट अगर दोनों पार्टीज का मिस्टेक हुआ है towards the subject matter, then it is a bilateral mistake of fact. I repeat, mistake of fact is a mistake towards the main subject matter for which the contract was formed. Mistake of fact can be classified into two things: bilateral mistake of fact, unilateral mistake of fact. If I say bilateral mistake of fact, it is a mistake done by both the parties towards the fact of the contract, wherein the contract will be a void contract. For example, मेरे पास एक घोड़ा है, एक रॉयल ब्रीड का घोड़ा है. उस घोड़े को खरीदने का इच्छा मुकेश अंबानी ने दिखाया है. अब मेरा घोड़ा रहता है फार्म हाउस में, मैं रहता है सिटी लाइफ में. अब मुझे नहीं मालूम घोड़ा मर चुका है, मुकेश अंबानी को भी नहीं मालूम है कि घोड़ा मर चुका है, एंड वी बोथ एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. फिर मैं बोलता हूं कि चलो मैंने घोड़ा बेच दिया, मुकेश अंबानी ने बोला ओके घोड़ा खरीद लिया. हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने वाले थे 10 दिन के बाद. यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो मैं मेरे फार्म हाउस के मैनेजर को बता दूं कि मैंने वो रॉयल ब्रीड का घोड़ा बेच दिया है. तब जाके मुझे मेरा फार्म हाउस का मैनेजर बोलता है, अरे सर वो घोड़ा तो आज सुबह को मर गया है. मतलब तुम सोचो, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तब क्या मुझे मालूम था घोड़ा मरा हुआ है? नहीं. क्या मुकेश अंबानी को मालूम था कि वो घोड़ा मरा हुआ है? नहीं. We both were entering into a contract towards that horse, but that horse was already dead, which we both never knew about, which means we both are under a mistake of fact, wherein we both are under a mistake of fact, wherein we cannot perform this contract. जब हमने घोड़ा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया तब हमें लग रहा था कि घोड़ा बिक जाएगा, बट अब हमें पता चल गया है कि घोड़ा मर चुका है, तो अब मैं वो घोड़ा उसको बेच सकता नहीं हूँ, वो घोड़ा मेरे से खरीद सकता नहीं है. मतलब it becomes impossible to perform, मतलब the contract will be a void contract. It is impossible to perform. मेरे और मुकेश के बीच में सबसे मेन सब्जेक्ट मैटर क्या था? हॉर्स. कहने से वो हॉर्स मर गया था या हमको मालूम नहीं था, मतलब हम दोनों पार्टीज का मिस्टेक था टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर. इट इज अ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट व्हिच मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. रुको, अगर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, बट अगर बायलैटरल मिस्टेक टुवर्ड्स प्राइस है, अगर तुम्हें भाव से लेके कुछ मिस्टेक है, इफ यू आर अंडर मिस्टेक टुवर्ड्स प्राइस, बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक टुवर्ड्स प्राइस, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड.
मैंने रमेश को बोला, रमेश क्या तू मेरे पास से शुगर खरीदेगा? रमेश बोला, हाँ सर मैं शुगर खरीदूंगा। मैंने बोला क्या भाव पे खरीदेगा? तो रमेश बोला, सर मैं मार्केट प्राइस पे खरीदेगा। मैं बोला ठीक है, मैं मार्केट प्राइस पे बेचेगा। हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर हो गया। फिर मैंने रमेश को बोला, क्या लगता है मार्केट प्राइस शुगर का क्या रहेगा? तो रमेश बोलता है, सर मुझे लगता है मार्केट प्राइस है ना शुगर का 50 रुपया होएगा। मैंने बोला हाँ हाँ मुझे भी लग रहा है कि मार्केट प्राइस 50 का ही होएगा। बट फिर हमें पता चला कि शुगर का मार्केट प्राइस 50 नहीं था, शुगर का मार्केट प्राइस तो 60 रुपया था। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था? दैट आई एम गोइंग टू सेल शुगर एट मार्केट प्राइस। रमेश ने बोला ही इज रेडी टू परचेज शुगर एट मार्केट प्राइस। Market price was 60, but we thought it was 50. Can I say we both are under a bilateral mistake of price? But in this case, is the contract performable? Yes, हम लोग शुगर ले सकते हैं, बेच सकता है। मतलब इधर अगर bilateral mistake of price होएगा तो contract valid होएगा, but bilateral mistake of fact होएगा तो contract void होएगा। सोचो, अगर मुझे मालूम था कि घोड़ा मर चुका है, मुझे मालूम था घोड़ा मर चुका है, बट फिर भी मैंने ये चीज मुकेश अंबानी को नहीं बताया, तो कहने से मैं मुकेश अंबानी के साथ फ्रॉड कर रहा है। एंड अगर फ्रॉड कर रहा है तो इट इज समथिंग कॉल्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा मत सोचो इट इज अ यूनिलैटरल मिस्टेक। मैंने गलती किधर किया है? मेरे को मालूम है कि घोड़ा मर चुका है, मुझे मालूम है कि घोड़ा मर चुका है, फिर भी नहीं ये चीज अगर मुकेश अंबानी को नहीं बताया है तो कहने से आई एम मेकिंग एन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, एंड व्हेनेवर इट इज एन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, इट इज अ फ्रॉड. So mistake of fact divided into two parts: bilateral mistake of fact, unilateral mistake of fact. If it is a bilateral mistake of fact, both the parties are under a mistake of fact, the contract is void. However, if it is a bilateral mistake towards price, then the contract will be valid. Unilateral mistake of fact का मतलब होता है only one party is under a mistake of fact. अरे भैया, अगर हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें तुमने कोई गलती किया है, तो गलती तुमने किया है ना, मेरे लिए तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेबल है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को तो वैलिड ही मानेगा। अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया तो मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाएगा। परफॉर्म नहीं किया तो ना, बट जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था तब तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था ना। याद करो, हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा है। फॉर्मेशन के टाइम पे अगर तुम गलती करते हो तो तुम्हारे गलती का सजा तुम भुगतोगे। मैंने तो कोई गलती किया ही नहीं है, तो फॉर मी द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. Are you sure? So unilateral mistake of fact is a mistake wherein only one party is under a mistake of fact, wherein the contract will be always and always rendered as a valid contract. तुम्हारा गलती है तो उस गलती का सजा तुम भुगतेगा, but for me the contract will be a valid contract. Are you sure? तो mistake are of two types: mistake of law, mistake of fact. Mistake of law जिसमें mistake of Indian law रहेगा, not excusable, you will be punished. However, you have to rectify the contract and then you have to perform the contract, hence the contract will be a valid contract. Mistake of foreign law is excusable. हाँ भाई, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगा, बट तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाओगे, इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, द कॉन्ट्रैक्ट इज void. Mistake of fact is a mistake towards the main subject matter for which the contract was formed. द कारण जिसके कारण हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है, अगर उसी कारण में हमने कोई मिस्टेक किया है तो इट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. जिसमें अगर दोनों पार्टीज का मिस्टेक हुआ है तो इट इज अ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट wherein the contract is void, impossible to perform. However, if it is a bilateral mistake of price, then the contract is performable, the contract will be a valid contract. But अगर एक ही पार्टी का मिस्टेक towards fact होता है, if there is a unilateral mistake of fact, then the contract will be always and always a valid contract. Are you sure? तो यहाँ पर in this module we have completed a concept of free consent, जिससे हमें ये पता चला कि practical life में in order to enter into a valid contract we don't require a consent, we require a free consent, and free consent is a consent which should not be taken either by coercion or undue influence or fraud or misrepresentation or through mistake. Are you sure? So over here we will wind up point number F, that was nothing but free consent. Thank you.